I, Harshita Jha, along with my co-host Ashutosh, on behalf of SP ITISM Student Chapter and FIPI ITISM Student Chapter, feeling honored to welcome our esteemed guests who were once our final year seniors and now have successfully embarked on their professional journeys. We are privileged to have them join us for this placement talk, where they will be sharing their valuable experiences and insights after being placed in the prestigious company Cain Oil and Gas Vedanta Limited. A brief description about this amazing company. Cain Oil and Gas Vedanta Limited is the largest private oil and gas exploration and production company in India. It accounts for more than a quarter of India's domestic crude oil production, and it is a part of Vedanta Resources Limited, the world's sixth largest diversified natural resources conglomerate with an interest in oil and gas, zinc, lead, silver, iron ore, aluminium, and commercial power. For this placement talk, we are so fortunate to have here with us few seniors who will share their experiences and all the preparation strategies along with challenges they faced in their graduation life. For this, I welcome Rajkumar sir, Vishal Datta sir, Aisha Rani ma'am, Ajay Kumar sir, Pranav Tripathi sir, Shivangi Patel ma'am, Apurv Shandilya sir, Ranjan Kumar sir, Ritik Raj sir, Vishal Kumar sir, Ankur Adarsh sir, Bhavna Roy ma'am, K. Gautam Yashwant sir, Omkar Rajesh Kurlekar sir, Mohammad Mudassir Alam sir, Praveen Kumar sir, Sameer Sagar Sen sir, Harishankar Tripathi sir, and Nirmalya Basu sir, Devansh Tomar sir. We are so delighted to have you all seniors, and thank you so much for giving your precious time to this placement talk. So let's start this placement talk with the very first question. That what factors influenced your decision to exclusively pursue employment with this particular company? PPO मिल गया इसमें. Personally, I was inclined to join Cain because it is the largest E&P company in the private sector, and I wasn't very keen on joining a PSU. If any other I think Vishal के पास एक अच्छा आंसर होगा. So I think Vishal is the right person to answer this question. He is the one who made me join Cain. So yeah. जैसे मेरे दोस्त ओमकार ने बताया कि एक तो बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि ये कंपनी लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनी है एंड करेंटली होल्डिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ एक्रेज इन इंडिया. सो पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है. इफ द प्रोजेक्ट्स गेट सक्सेसफुल तो इनका टारगेट भी अच्छा है. 2030 तक 50% ऑयल प्रोडक्शन डोमेस्टिकली. सेकेंड ये अच्छा है कि यू विल यहाँ पे लर्निंग स्कोप तुमको बहुत ज़्यादा मिलेगा. एक प्राइवेट कंपनी से तुम अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी से कंपेयर करोगे और सारे प्राइवेट कंपनी में तुमको लर्निंग स्कोप ज़्यादा मिलता है. और यहाँ ये एक लौता एक बढ़िया सा ऑपरेटिंग कंपनी भी है जो लगभग सारे टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं सब जगह. एंड दिस थिंग्स आर वेरी गुड. और मेन सबका मेन और एक रीज़न होता है पे, वो भी बहुत अच्छा है. सो ये सब एक ये मिक्स्ड आंसर्स है. ऐसा कोई फिक्स आंसर नहीं है कि एक ही चीज़ है जो इंस्पायर करता है लोगों को. And just to add to Vishal's point and not to demean ONGC, but PSU में जाके इंसान की एक सरकारी टेंडेंसी हो जाती है कि बस वो टाइम पे जाओ, ऑफिस जाओ, नाश्ता करो, फिर वापस आ जाओ, लंच करो, वो टाइप से. एंड ग्रोथ भी कहीं ना कहीं आपका रेस्ट्रिक्टेड सा होता है, whereas प्राइवेट में वो चीज़ नहीं होती. आई थिंक एक और पॉइंट है. आई थिंक वर्क कल्चर वाली चीज़ जो आई थिंक राइटली उनका सेट की वो जो टेंडेंसी आई थिंक मेंटली ऐसा है ना कि इफ़ यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब तो एक वो रहता है कि ठीक है हो ही जाएगा. बट इन प्राइवेट यू हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग. सो उससे तो टेंडेंसी होता है सोचने का ना कि यू हैव टू ग्रो अलॉन्ग विद पीपल. और फिर वी हैड इंटर्न है ना, मैं हूँ, विशाल है यहाँ पे, आयशा है, तो वी हैड इंटर्न देयर, अजय भी यहाँ पे.
So we had intern over there in the summer. तो वहाँ पे जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बहुत अच्छा था. लाइक अगर किसी से सीनियर से इंटरेक्ट करना अपने मैनेजर से, अगर वो तुमसे 20 साल फ्यूचर में लाइक आगे है, बहुत पहले का सीनियर है, इफ ही इज 60 years old है ना, 50 years old, डजंट मैटर, ही इज सिटिंग ऑन द सेम टेबल एंड हैविंग लंच विद यू, हैविंग ब्रेकफास्ट विद यू, तुम डिस्कस कर रहे हो मतलब ऐसा इंटर्न का चीज़ कि सर आई एम डूइंग दिस and what are your inputs in this and what should I do, what should I think big in this. So वहाँ से जब input आ रहा है ऐसे सामने सामने, so this is I think not possible in many of the other companies and basically and the other PSUs I guess. So वहाँ पे एक restricted वो चीज़ हो जाता है, but of course ONGC is something big. तो सब बहुत लोगों का ड्रीम होता है ONGC का, and definitely लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं गेट के लिए भी. And I would ask juniors like from second year and third year as well, you have to prepare GATE not just to get into ONGC, but to prove that you have the metal in yourself, that you have learned petroleum engineering for these 3 to 4 years. And हमारे कॉलेज का एक रिकॉर्ड काफ़ी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया इन गेट. सो आई ऑल्सो वांट कि मतलब अच्छा करो, मतलब पढ़ रहे हो तो यू कैन गिव गेट थर्ड ईयर में, कुछ ऐसा जा नहीं रहा तुम्हारा, यू जस्ट हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट यू हैव लर्न. तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. वेरेवर यू गो यू जस्ट हैव टू थिंक कि हमको ग्रो करना है तो यू कैन गो एनीवेयर. तो उसका फॉर केन इट इज लाइक ग्रोथ ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा कंपनी है ना, एंड एवरीथिंग वर्क्स ऑन दैट. सो यस, इट इज वन ऑफ द रीजंस. Yes, exactly. The fact that Kane is a or any private company is a performance based company और promotion तुम्हारा उसी हिसाब से हो रहा है in comparison to सरकारी नौकरी, ये एक अलग ही मोटिवेशन होता है. प्लस द फैक्ट दैट हम लोगों के पास क्योंकि 2 months का प्रायर एक्सपीरियंस है एंड वी आर कन्विंस्ड एनफ कि हमने बहुत ज़्यादा सीखा है एंड वी हैव अ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि आगे की लर्निंग कर्व भी बहुत अच्छी रहेगी. तो ये सारे फैक्टर्स भी काफ़ी कन्विंसिंग है कि वी कैन स्टार्ट आवर प्रोफेशनल जर्नी फ्रॉम हियर. तो मैं भी ये कहूँगा कि सभी जो पॉइंट हैं वो तो बताई थी कि एक तो लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप फ्रेशर्स हैं, एज ए फ्रेशर्स इस कंपनी में ज्वाइन करना मतलब बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि हमारे सब सीनियर्स वहाँ होते हैं, हमें गाइड करने के लिए होते हैं. तो जैसा मेरे को तो जैसे मेरे बैचमेट्स को सीनियर्स से जब पता चला है, जैसे उन्होंने बताया कि किसी भी सीनियर से जाके हम गाइडेंस ले सकते हैं, तो ये कल्चर बहुत अच्छा होता है. और प्रैक्टिकली भी बात करें तो आईएसएम में हम जानते हैं पेट्रो में 3 ही कंपनियां हैं और उन 3 कंपनियों में नंबर जे की बात करें तो उसमें जॉब सिक्योरिटी का थोड़ा इशू होता है. तो अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो केन अच्छा. Thank you so much, senior. Seniors, as you all are talking about internship under Kane, so you all firstly went for doing internship under Kane and then back the PPO. So what are the criteria to get PPO under Kane? And whoever went for doing internship, so all of them got PPO or not everyone was able to get PPO? Or is there any criteria how to get PPO under Kane? So that's my first question. विशाल बताओ भाई, विशाल बताओ भाई. सारे क्वेश्चन विशाल के लिए आ रहे हैं. I would like to answer this question very specific to you, what you have asked. First of all, that we all went on intern. This is a slight correction here. There are seniors here who have got both placement and PPO after internship. So you have asked that what determines your PPO. So in 2 words, the answer is learning attitude. You go into internship, you do your project, you may be wrong in doing your project, you may be not so perfect in doing your project, but if you show a decent learning attitude and talk to the people around there, you are good. You are a good candidate for getting a PPO. That's the simple answer to this. I think मेरे हिसाब से getting a PPO totally depends on कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है. तो एज अ स्टूडेंट तुम्हें ये कोशिश करना चाहिए कि तुम काफी कुछ सीखो, मेंटर से बात करो एंड तुम्हारा टोटल फोकस ये होना चाहिए कि तुम्हारा खुद का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है.
क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब तुम्हारे पास इतना ज्यादा एक्सपोजर है टू द रिसोर्सेज, टू इंडस्ट्री, टू एल्यूमिनाई बेस एंड एवरीथिंग. सो ये तो रिजल्ट है. अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो यू विल गेट अ पीपीओ हियर और मे बी इन द प्लेसमेंट सीजन. काम तो अच्छा हो जाएगा पर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी लर्निंग ओनली. जो प्रणव ने कहा था कि लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत परफेक्ट वर्ड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि लर्निंग एक्सपीरियंस और तुम लर्निंग एटीट्यूड कैसा तुम्हारा, उसको अगर थोड़ा सा एलोबरेट करें, अगर किसी को समझना अच्छे से ही, तो इट इज़ लाइक कि मतलब यू हैव टू प्रूव दैट यू आर नॉट जस्ट हियर टू एंजॉय एंड टेक दिस स्टाइपेंड. मतलब तुमको 40,000 2 महीने का मिला, तुम खाए पिए और कुछ करके वहाँ से आ गए, डोंट केयर अबाउट दैट. तो ऐसा नहीं है कि इट हैपन्स कि मतलब तुम एक ऐसे स्पेस में बैठे हो, एक छोटा सा बंकर जिसमें सारे ऑफिसर्स हैं, या फिर तुम्हारा अराउंड कुछ लोग हैं, मतलब 4-5 लोग ही हैं, एंड यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, या तुम कुछ भी कर रहे हो. तो इट इज़ नॉट लाइक कि लोग तुमको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं. तुम कैसे काम कर रहे हो, तुम लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, तुम कितना इनक्विजिटिव हो सीखने के लिए. तुम अगर तुम्हारा इंटर्न रिजर्वायर में है तो क्या तुम्हारा, अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है अगर प्रोडक्शन में, तो क्या तुम उसके लिए अप्रोच कर रहे हो. अगर तुम्हारा रिजर्वायर में इंटर्न है तो आर यू अप टू कि सर मुझे फील्ड जाना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ देखना है, सर लाइक मेरे को नहीं पता ये चीज़, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कैन आई आस्क दैट, कुड यू एक्सप्लेन दिस टू मी, सर मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ आप सपोर्ट कर सकते हैं क्या, कुछ मटेरियल दे सकते हैं क्या, सर क्या और चीज़ें सीखनी चाहिए मेरे को इसके साथ. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं. जब तुम वहाँ जाते हो, इंटर्न करते हो, तो यू हैव बंच ऑफ क्वेश्चंस, एंड जब तुम उसको आंसर करते रहते हो तो यू लर्न. लाइक इंटर्न में ऐसा था कि मेरा इंटर्न रिजर्वायर में था एट RGT. सो रैंडमली लाइक हम सब बैठे हुए थे, मैं कुछ काम कर रहा था, लाइक एक्सेल वर्क था, तो आई वाज डूइंग दैट. एक सीनियर आते हैं लाइक द इंजीनियर, एंड ही आस्क्ड मी कि क्या कर रहे हो. मैं सर ये मैं एक्सेल में कर रहा हूँ, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट गोइंग ऑन. तो कहते हैं क्या सब करते रहते हो तुम, फील्ड जाओ, घूमो. तो सर मेरा तो ये करना है, टू डू दिस. मतलब कि हाँ सर फील्ड जाऊँगा. कहते हैं नो दिस इज नॉट समथिंग, ड्रॉ मी अ फेस डायग्राम ऑफ चाय, यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ चाय हियर इन द ऑफिस, सो यू शुड नो द फेस डायग्राम ऑफ चाय. तो अब तुम फेस डायग्राम ऑफ चाय, दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, कोई सीखता नहीं है, किसी बुक में नहीं है, तारक अहमद में नहीं, कहीं भी नहीं है, टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं. बट दिस इज कि सर अब आई कैन थिंक ऑफ समथिंग कि सर अच्छा ओके आई विल ट्राई सर, कि मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने का, व्हाट इट कैन बी. और मेरे से लाइक आई गिव इट 5 to 10 minutes, मेरे से नहीं हुआ. नेक्स्ट थिंग शुड बी सर मेरे को नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे बनेगा, आई वांट टू नो दिस. तो ये जो लास्ट में तुमने क्वेश्चन पूछा ना, सर आई वांट टू नो दिस शोज कि मतलब तुमने इग्नोर नहीं कर दिया उस चीज़ को, क्योंकि वो यूज़ का नहीं है. समथिंग दैट इज नॉट इनटू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इज नॉट आउटसाइड ऑफ द लर्निंग कर्व. अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुमको वो चीज़ दिखेगा. और एंड में जब रिव्यू होता है प्रेजेंटेशन का, तो तुम्हारा मेंटर इज नॉट अलाउड टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन टू यू, इट इज़ द बंच ऑफ अदर गाइज, लाइक जो सारे मैनेजर्स होते हैं. तो उसमें बहुत लोग होते हैं, लाइक तुम्हारे मेंटर को छोड़ के एवरीवन विल आस्क क्वेश्चन. वो सारे टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग लोकेशंस के, सूरत से आएंगे लोग, मंगला से आएंगे, रागेश्वरी से आएंगे, कहीं से आ जाएंगे. यू वुड नॉट नो देम बिफोर कि कौन है वो लोग, कहाँ से हैं. और वो रैंडम तुम्हारे प्रेजेंटेशन से तुम मेहनत करके बनाए हो 10 PPT 15 स्लाइड्स, उससे वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे. उनको कोई पता नहीं है तुम क्या बनाए हो, क्या नहीं किए हो काम, बट हाउ यू एक्सप्लेन देम, जो तुमने काम किया है, तुमने कितने डेप्थ में उसको समझा है, कितना तुमने डिटेलिंग किया है काम पे. आई थिंक वो इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे कि हाउ डू यू एक्सप्लेन देम. और उसके बाद जब रिव्यू होता है चीज़ें, तो फिर जो जिस इन्वायरमेंट तुम काम किए उनके पास दे गेट अ फॉर्म टू रिव्यू यू, कि तुमने उस इन्वायरमेंट में कैसा अपना लर्निंग एटीट्यूड शो किया है, कि क्या तुमने क्वेश्चंस आस्क किए हैं, क्या तुम लेट आते थे, क्या तुम टाइम पे शो अप नहीं करते थे, क्या तुम हमेशा बिजी थे फ़ोन में, इंटर्न लैपटॉप खुला हुआ है या तुम रील देख रहे हो, ये वो चल रहा है इधर उधर, तुम बहुत ज़्यादा चिल थे अपने इंटर्न में, यहाँ काम तो हो ही जाएगा. ऐसा नहीं है. लाइक वहाँ पे वी हैड दिस थिंग कि हमको अगर प्रोजेक्ट करना 2 महीने तो 2 महीने में ही करना है. वी डू नॉट हैव अ होल ईयर टू डू दिस. तो हम लाइक रात के अगर 2 बजे भी बज रहे हैं, एंड कोई सीनियर अभी कॉन्फ्रेंस रूम में आके देखता है कि अरे यू गाइज आर वर्किंग दिस लेट, तुम्हारा तो ऑफिस 5 बजे खत्म हो गया था. तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 बजे खत्म हो गया तो हम 5 बजे बैग रख दें और फिर हो गया चिल और उसके बाद सो रहे हैं. नो, अगर हमको कुछ काम करना है, कल अगर मीटिंग है मेरा मेंटर के साथ, हमको वो चीज़ कंप्लीट करना है, तो यू हैव टू डू दिस बिफोर दैट.
you have to interact with your mentor, you have to consult him or her. So of course ये मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने, but this is how it is. मतलब you have to be very interactive and very learning. और ये मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि चाय का फेस डायग्राम तो सीख ही लें इस मीटिंग के बाद, क्योंकि सेम क्वेश्चन मुझे प्लेसमेंट में भी पूछा गया था। तो वो जस्ट अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो सीख लो। मेनली 2 फैक्टर्स डिपेंड करता है अगर इंटर्न से पीपीओ कन्वर्ट करना है। पहला तो अगर वैकेंसी है तो मिलेगा, नहीं तो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो तो नहीं मिलेगा। दूसरा, एक्चुअली जो प्रोजेक्ट मिलता है ना, हमारे सीनियर भी यही बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट से, जैसे वो सब 20 साल एक्सपीरियंस थे, बहुत ज़्यादा थे, तो वो सब बोल रहे थे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट मीन्स ऐसा होना चाहिए कि तुम कंपनी को क्या कंट्रीब्यूट कर दो। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर पे काम करके बटन क्लिकिंग करके तुम मतलब कि जो नॉर्मली पिछले इंटर्न चले गए, तो कुछ ऐसा आउट ऑफ, तो वो एक डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट भी थोड़ा मतलब कैसा प्रेजेंटेशन रहा और तुम्हारा मीन्स क्या कंपनी का मीन्स तुम्हारा क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स कैसा रहता है, क्योंकि मैक्सिमम सब रिजल्ट चाहते कि कंपनी किस तरह बेनिफिट हो तुम्हारे इंटर्न से। यही है। देखो सबने बता दिया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। लाइक तुम कोई भी जब इंटर्न में जा रहे हो या सेकेंड ईयर में जो हो, अगले साल इंटर्न में जाओगे, तो तुम्हारा मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि पीपीओ कैसे आए। रैदर तुम्हारा ये फोकस होना चाहिए कि जो मेरे को काम अलॉट हो रहा है, क्या मैं उसको पूरा अपना पोटेंशियल पे कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे सबने बताया, तुम्हारा लर्निंग एटीट्यूड, छोटे छोटे चीज़ों को भी देखना जो तुम्हारा चीज़ में भी नहीं है बट तुम वो भी ट्राई आउट कर रहे हो, और तीसरा है वैकेंसीज। इन सब में अगर तुम पॉजिटिव आ जाएगा तो तुम्हारा मोर और लेस केन में तो पीपीओ फिक्स ही होता है। पर्टिकुलरली मेरा पीपीआई था, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ एंड मेरा उसके बाद पीपीओ आ गया। सो इट्स लाइक दैट। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तुमको बस अपना रेगुलर, मतलब ऐसा नहीं कि इन प्रोजेक्ट बनाने के बाद 7 दिन पहले काम चालू किए, तुमको 60 डेज ही अपना फुल पोटेंशियल पे ट्राई करो। फुल पोटेंशियल भी ना हो, कम से कम 80-90% पोटेंशियल पे भी तुम रोज अपना दिन को वहां पे बिताओ। हर दिन इंटर्न से सीखने के बाद आज मैं क्या सीख के आया, वो एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, कहीं ना कहीं वो काम आ जाता है। तो यही मेन चीज है, ये सब चीज तुमको काम आएगा। अजय एक अच्छा पॉइंट बोला था प्रेजेंटेशन वाला, आई रिमेम्बर फ्रॉम दैट। खास करके अपने डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 2 टूल्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज एक्सेल, सेकंड इज पावर पॉइंट। दिस लाइक की ब्रेथ एंड ब्लड इन योर बॉडी। अगर कुछ भी कम होता है, यू विल फेस प्रॉब्लम्स। अगर तुमको सब कुछ आता है, तुम यू आर गुड एट रिजर्वायर इंजीनियरिंग, तुमने प्रोजेक्ट एकदम फाड़ एकदम कर दिया, तुमको सब कुछ समझ में आ गया, अब तुमको पता ही नहीं है हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू डू एक्सेल, वहाँ पे यूज है, वहाँ जाकर तुम पीपीटी बनाना सीख रहे हो, तो दिस विल नॉट वर्क। तुम्हारा आधा टाइम तुम्हारा प्रेजेंटेशन बनाने में चला जाएगा। तो यू हैव टू बी लाइक, तुम यहाँ से तुमको प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाना आता हो, यू कैन कुछ बेसिक स्लाइड्स को करना आता हो, तुमको एक्सेल बेसिक्स फॉर्मूलेस थोड़े पता होना चाहिए, शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। यहाँ नहीं कि वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सेल सीख रहे हैं आधे टाइम और फिर आधा टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दिस इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम और दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड। तो मतलब यू हैव टू बी गुड एक्सेल एंड पीपीटी। हम लोग जब इंटर्न में गए थे, जो मेजरली लोग हैं, मैं, राज, ये लोग तो एक्सेल कम से कम सीख के गए थे, लेकिन हम लोग को वो दिक्कत आया था पहले कि पीपीटी कैसे बनाऊंगा, उसको कैसे प्रेजेंटेबल बनाऊंगा, कैसे ज़्यादा इन्फोग्राफिक से उस चीज़ को प्रेजेंटेबल दिखाए। तो ये ऐसा नहीं कि तुम 2 महीने में सीख सकते हो, हम लोग भी उतना सही तरीके से सीख नहीं पाए। तो इसके लिए ग्रेजुअल प्रोसेस है, अभी से चालू कर दो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में तुम कहीं भी जाओ, तुमको एट द एंड अपना रिजल्ट जब तक तुम नहीं दिखा पा रहे हो अच्छे से, तो उस रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई भी कंपनी में भी। तो तुमको अपना रिजल्ट निकालने के साथ उसको लाइक अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना भी बहुत जरूरी है। सो एक्सेल एंड पावर पॉइंट इज मस्ट। तो वही है, अभी से चालू कर दो इस पे काम। इसके लिए अब ये भी तो हमने बोल तो दिया कि यू हैव टू डू एक्सेल एंड पीपीटी। बात है कि कहाँ से करेंगे। तो लाइक जो तुम्हारा दोनों चैप्टर्स हैं, सीपी एंड एसपी, तो इसमें लाइक प्रेजेंटेशन वाले बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं दोनों चैप्टर्स में। तो और नहीं बस अपने कॉलेज में नहीं, दूसरे भी कॉलेजेस में लाइक पीडी हो गया, यूपीएस हो गया, अगर कुछ भी प्रेजेंटेशन का कहीं भी दिख रहा है तुमको कि आई हैव अ चांस टू मेक अ प्रेजेंटेशन, या फिर कोई भी कंपटीशन बाहर का, वेयर आई हैव अ चांस टू मेक अ प्रेजेंटेशन, गो अहेड,
जीतेंगे उठेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है क्या करेंगे, बट यू हैव टू बी लाइक यस आई विल एटलीस्ट ट्राई टू मेक अ प्रेजेंटेशन। जब पहली बार मैंने प्रेजेंटेशन अपना देखा था 3 साल बाद, जो मैंने फर्स्ट में बनाया था फॉर एनर्जी रेवोल्यूशन, तो मुझे हंसी आ गई थी कि ये क्या बनाया मैंने। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस, ऐसा नहीं कि तुम एक दिन पहला दिन शुरू करोगे उस दिन एकदम फाड़ बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तुम सीखोगे कैसे इनपुट्स उसमें कैसे लाना है, तुम दूसरे लोगों को देखोगे, टीम में काम करोगे तो अच्छा उसको अच्छा ये ऐसे करते हैं तो यू लर्न। आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है और मैं ये हाईलाइट भी करना चाहूंगी कि एज वी नो कि प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री में। मतलब यू विल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन, वीकली प्रेजेंटेशन, मंथली प्रेजेंटेशन, कुछ भी स्पेशल हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंट डेवलपमेंट, तुम्हारा अपडेट वाला प्रेजेंटेशन। तो बिकॉज ये इतना रिकरेंट है तो यू हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। ओके, एक तो ये। दूसरा जो ये बात बोला राज ने कि कॉम्पिटिशन हेल्प्स अ लॉट, ट्रू, take part in a lot of competitions and irrespective of कौन से चैप्टर का है, if it is from oil and gas industry, it is international, international है तो तुम और भी चीजें सीखोगे क्योंकि और नए नए थीम पे वो लोग कराते हैं काम, तो और मजा भी आएगा, तुम्हारा ग्रुप बनेगा तो आपस में भी बॉन्डिंग होगी। प्लस वहां पे जो जजिंग क्राइटेरिया होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, इस वजह से यू नो देयर इज दिस फोर्स की यू हैव टू लाइक स्ट्राइव टू डू बेटर वैसा। तो ये है कि competitions helps a lot to improve your skills, तो take part in them, be sure to take part in them. Thank you so much, seniors, for this wonderful answer. Now moving on to the next one. This is from a first year student. Sir, his question is, I am confused between choosing core and non-core and my CGPA is stagnant around 7.5. So what would be the best possible advice for me at the end of my third year? You could please take it. At the end of third year और अभी उसका GPA 7.5 है, पढ़ा लेगा ना भाई तब तक। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो इंटर्न कर सकता है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। For core 7.5 मतलब I would like to फर्स्ट mention ईयर में that होगा ना अभी उसका GPA। Yes, sir. हाँ, तो I would like to just say here that कि 8.5 और 7.5 कॉलेज के बेंचमार्क GPAs होते हैं। 8.5 is pretty much required for getting interns and 7.5 is must for placement, both for core and non-core. तो it's an advice कि 7.5 पे तो 8.5 तक ग्रेजुअली पहुंचेगा या नहीं वो बात की बात है, बट 7.5 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। And the next question which you asked, that how to decide between core and non-core, try both. That's the only option. मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लेसमेंट से पहले किसी एक को डिसाइड कर लेना कि तुम्हें जाना एक्चुअली किस में है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं भी दोनों में ट्राई कर रहा था, तो लास्ट तक आते आते फाइनली मैंने मन बनाया कि जब ONGC आई थी तो फाइनली मैंने फिर कोर में जाने का मन बनाया था, क्योंकि फिर बाद में अगर तुम दोनों में ट्राई करोगे तो दोनों पे अच्छे से फोकस ही नहीं कर पाओगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 1 दिसंबर को मेरे 6 इंटरव्यू थे, लेकिन सब इंटरव्यू मैं बेकार कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था मुझे या तो केन में ही जाना है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था अब तो कोर में ही जाना है। तो बेकार में अपनी एनर्जी मतलब दूसरी फील्ड में अगर तुम वेस्ट करोगे तो तुम अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे अपनी मेन फील्ड पे भी। तो मतलब ट्राई कर सकते हो तुम दोनों में, लेकिन डिसाइड थोड़ा जल्दी कर लेना, ये मेरी सजेशन रहेगी। एंड अगर GPA क्राइटेरिया को हटा भी दे तो भी मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि मतलब सब कुछ ट्राई कर लेना, कोडिंग, कोर एंड कंसल्टिंग, फाइनेंस वगैरह, सो दैट you'll get an idea कि जम रहा है नहीं जम रहा है। एग्जैक्टली लाइक अभी तो तुम फर्स्ट ईयर में हो, अभी सारे चीज़ों में ट्राई आउट करो, बट मेक श्योर कि GPA बने रहे। वो एक्चुअली वो तुमको एटलीस्ट एक सेफ्टी देता है, लाइक एक कुशन देता है। ऐसा नहीं है कि 7.5 के नीचे है मतलब तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे कंपनीज का क्राइटेरिया 6 CGPA 6 भी होता है। सो बट वही बात है कि तुम्हारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे अगर तुम्हारा GPA ज़्यादा होगा 7.5 से, तो वो मेंटेन करने के साथ साथ कोर नॉन कोर ट्राई करो। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि कोर के ही कुछ प्रॉब्लम्स है अपने इंडस्ट्री का जो तुम नॉन कोर वे में ट्राई आउट कर सकते हो। तो इस तरीके ये कुछ तरीका भी अपना सकते हो, इसमें तुमको पता लग जाएगा कुछ दिन बाद कि मेरे को अल्टीमेटली करना क्या है।
एंड उसके बाद एक चूज करना और उसके लिए रन करना। उसके बाद मतलब चाहे उस पे कंपनीज मतलब ऐसा कि कम भी आए, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा वही रहना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ देवांश जाओ, गो अहेड। ओके, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में तो मेरे हिसाब से सबको ही नॉन कोर करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोफेसर जैसे AK पाठक सर और राजीव उपाध्याय सर भी सजेस्ट करते हैं कि कोडिंग स्किल्स कहीं ना कहीं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी बहुत हेल्प करती है। और एक फ़ायदा तुम इससे ले सकते हो कि तुम अपना नॉन कोर स्किल्स यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हो कोर के लिए, और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा तुम्हारे CV में रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर तुम नॉन कोर सीख सकते हो कोई भी एक लैंग्वेज, पाइथन, C++, कोई भी एक लैंग्वेज अगर तुम सीख सकते हो तो वो आगे तुम्हारे कैरियर में भी बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि तुम पाइथन को यूज़ करके डिफरेंट टूल्स बना सकते हैं जिससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ट्राई करो कि एक लैंग्वेज सीखने का। ओके, थैंक यू देवांश। जो GPA वाला बात था ना, आई थिंक इनिशियली जब असाइन हुआ था मैं SPR तो मैं दिसंबर तक काम किया, उसके बाद प्रणव सारा कुछ देखा तो हम दोनों का एटलीस्ट ये पता है कि कितना रिक्वेस्ट आता है GPA का इंक्लूजन कराने के लिए, कितना रिक्वेस्ट आता है ब्रांच इंक्लूजन कराने के लिए। तो अगर तुम्हारा GPA ही कम है, बिलो 7 है, तो बहुत चैलेंज होता है, बहुत लड़ना पड़ता है। मतलब जो तुम्हारा असाइन होगा SPR उसको पता है, प्रणव को पता है, मेरे को पता है कि कितना लड़ना पड़ता है तुमको GPA के लिए। तुमको सब कुछ आता है, यू नो, मतलब पेट्रो में तुम फाड़ हो, GPA नहीं है। कंपनी तुम्हारे लिए अगर खुलेगी ही नहीं तो तुम क्या करोगे उस चीज़ का, कोई मतलब नहीं है। तो अगर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सबसे पहला चीज़ तो यही होगा कि सब कुछ करो बट मेंटेन अ GPA, डिसेंट GPA। अगर तुम मतलब यू कैन ट्राई कि 8 के आसपास चले जाए, बहुत अच्छा है। एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब तुम 8+ कर लो तो बहुत अच्छा है। इनिशियली फॉर केन ऐसा होता था कि इट वाज अ हिस्ट्री फॉर केन कि 8.25 इज द कट ऑफ फॉर इंटर्नशिप, और हमारा भी लाइक हमारे बैच का भी इंटर्नशिप 8.25 पे ही कट ऑफ था। एक वी हैड आवर बैच में जिसका 8.24 था, है ना, आई कुड नेम हर, तो बट 8.24 पे नहीं हुआ उसका, एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुआ, तो शी कांट गिवन एन इंटरव्यू इटसेल्फ। तो तुम ऐसा मानो कि मतलब कितना हार्ड टू है। पहले तो GPA लगा दो कट ऑफ, तो तुमको सब कुछ आता है फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना। मतलब तुमको मान लो 8-9 वाले जाता तो सब कुछ आता है, यू लर्न एवरीथिंग इन डिटेल, पर तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि GPA कट ऑफ ही लग गया 8.25 पे। ऑल्सो ये चीज़ बहुत क्लियर करना इंपॉर्टेंट है एज एन SPR, जब मैं था एज अ सर्विंग, है ना, कि केन ने इस बार ऐसा हो गया कि 29 इंटर्न्स उठा लिए थर्ड ईयर से, है ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि केन हैज टेकन 29 गाइज फ्रॉम बैच ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पहले 7-8 यही था नंबर, लाइक 7-8 में ही चलता था सब कुछ। अगर केन ने 29 उठा लिया, दैट उसको तुम ऐसा वो मत ले लो कि केन अब हमेशा उठाते रहेगा 29। मतलब इसको तुम जनरलाइज मत कर दो खुद के लिए कि मेरा तो 29 लोग तो फिर अगली बार हो ही जाएंगे, 30 लोग तो हो ही जाएंगे, तो मेरा तो होना ही है। मेरा GPA भले इस बार अगर 6.5 वाले का हो गया तो दैट तुमको ये अलाउंस नहीं मिलेगा कि तुम अपना GPA 6 के आसपास 7 के आसपास गिरा के कर लो। नो, तुमको अपना GPA जितना ज़्यादा हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि GPA 7 ही रखना है, 7.5 रखना है, 8 रखना है, 8.5 रखना है। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एटलीस्ट अप टू कम से कम थर्ड ईयर तक, तो जब तक प्लेसमेंट नहीं होता तब तक तो एटलीस्ट तुम 7.5+ 8+ करो तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा फिर तो। बट 7.5+ तो रखना ही पड़ेगा तुमको, वरना बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तुमको सब कुछ आता है फिर भी। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि 29 इंटर्न्स का मतलब ये नहीं है फॉर द फर्स्ट ईयर्स डू, एंड जो सेकेंड ईयर में खास करके उनके लिए कि तुम्हारा इंटर्न अगले साल उस बेसिस पे लग जाएगा कि यू आर इनटू दैट रेंज। तो उसको वो मत मान के चलो ऐसा तुमको वो मिल गया है ना, एक पीछे से वो नहीं, एक फ्लो नहीं मिल गया कि यू विल गेट इनटू इट। ऐसा मान के चलो कि 8.25 पे ही होगा तो तुम उसके लिए प्रिपेयर करो, और नहीं भी होगा तो यू प्रिपेयर फॉर द गुड, मतलब एक ड्राइव करो खुद को अच्छे GPA की तरफ। एंड ऑल्सो फ्रॉम एन एकेडमिक स्टैंड पॉइंट, अगर कोई चाहता है कि फ्यूचर में MBA करना है तो ग्रेजुएशन का GPA इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो कंसिडर होता है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट। हमारे ब्रांच में से तुम लोगों ने देखा ही होगा कि भौतिक है जैसे और भी लोग हैं, लोगों ने फॉरेन इंटर्नशिप भी करी है, तो
it's also that the good GPA is like having a safety net, but also it opens a door for a lot of whole opportunities like MITEX में GPA का बहुत ज़्यादा बड़ा criteria होता है. If you don't even fulfill that, then there is no way forward. तो foreign opportunities के लिए भी काफी important. Thank you so much, seniors. So this was beautifully explained. I hope all the first years have got their answer. Like, this is the time to try out different things along with maintaining a good CG, because CG is very important. You cannot be negligent about it. Okay, so moving on to the next question. Like, Kane is known for its group discussion round. So how much important is GD round? How to prepare for it to ace GD? Better hear from the organizer and the judge. GD वाला जो आई गेस प्लेसमेंट वाले लोग अच्छे से बता देंगे. Yes, they are the right person. तो उसमें लाइक ये देवांश है, रंजन है, विशाल है, तो they can be the right person to answer. For GD preparation, अच्छा, go ahead देवांश please. No, go ahead. ये जो भी हुआ वो सेम जीडी में भी करना होता है, दूसरों को चांस देना होता है सबसे पहले. हाँ, ये अगर वहाँ टॉपिक होता है और 15 लोग होते हैं तो सब एक दूसरे पे चिल्लाएंगे तो जो मॉडरेटर उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि किसका पॉइंट नोट करना है और किसका नहीं करना है. तो बेस्ट वही होता है कि अगर किसी को मौका नहीं मिला है तो उसको प्रेफरेंस दो और उसको सबसे पहले बोलने का मौका दो. अगर कोई तुम्हारे टीम में ऐसा लगता है कि जो कम बोलता है तो उनको ऊपर तुम बोल सकते हो कि तुम पहले बोल लो, कि बाद में जब खिचड़ी हो जाएगी तो मौका नहीं मिलेगा. तो सेम अगर तुमको कोई टॉपिक मिल रहा है और 15 मिनट का टाइम होता है और 10 लोग होते हैं तो सबको 1-1 मिनट तो बोलने का वो चांस मिलता है. उसके बाद तुम खिचड़ी करने से बढ़िया है कि तुम एक दूसरे को चांस दो और 2-2 बार पॉइंट करके खुद से शांत हो जाओ, क्योंकि अगर वो तुम अच्छा बोले हो तो वो नोट कर लेते हैं. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम ज़बरदस्ती का कोई पॉइंट पुश कर रहे हो. अगर 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है, अगर तुम स्ट्रक्चरली अच्छे से करके और उनको बता चुके हो कि हाँ बोलते हैं, फिर वो नोट कर लेते हैं. फिर उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा वो पुश करने की ज़रूरत नहीं. हाँ, यही होता है कि जीडी के कुछ रूल्स होते हैं. तुम सिंपली गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे, तुम्हें वो मिल जाएंगे कि कैसे दूसरों को मौका देना चाहिए और कैसे रिप्लाई करना चाहिए कि पार्शियली एग्री करता हूँ या एग्री करता हूँ. ये सब रूल एक बार देख लेना और बाकी सबको बोलने का मौका मिलता है. और मेन बात यही है जो ऋतिक ने बताया कि एक दूसरे की बात काटने पे जो होता है बैड इंप्रेशन जाता है. तो जीडी से पहले तुम उसकी 1-2 बार आपस में प्रैक्टिस कर लेना. हम सब लोग तो आपस में प्रैक्टिस करते थे, प्रणव को मॉडरेटर बनाते थे, और तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हें अपनी गलतियां जो गलती कर रहे हो तो वो भी पता चल जाएगी. तो और सबको मतलब ये भी डाउट होता है कि मतलब जीडी में मतलब पहले हम बोले स्टार्ट करना बोले या फिर बीच में बोले या आखिर में बोले. तो आई वुड से कि अगर तुमको टॉपिक समझ में आ गया है, अच्छे से आता है, तो तुम फर्स्ट में बोलो, नो प्रॉब्लम. मतलब पॉइंट्स नोट कर लो और फर्स्ट में एकदम पारू बोल दो. और अगर मतलब पॉइंट्स नहीं मिल रहा है, एकदम नया टॉपिक मिल गया है, तो पहले 2-3 लोग का सुन लो, पॉइंट्स नोट कर लो और थोड़ा मतलब बना के बोल सकते हो. और आई वुड सजेस्ट कि 2 बार मिनिमम तो कम से कम मतलब बोल दो. एक मतलब 10 मिनट का या 15 मिनट का जितना भी जीडी है, तो उसमें मतलब 2 बार एटलीस्ट मिनिमम बोल दो 30-30 सेकंड के लिए, अगर मतलब कोई बहुत कम बोलता है. पर तुमको ये है कि मतलब एक नया पॉइंट इंक्लूड करना होगा. ऐसा नहीं कि मतलब जो पॉइंट रिपीट हो रहे हैं वही पॉइंट बोले जा रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए. एंड एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि प्लीज़ बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल एट ऑल टाइम्स. आपको दूसरे को बैश नहीं करना है या रूड नहीं होना है, वो अच्छा नहीं होता. एंड रिगार्डिंग द प्रिपरेशन पार्ट, आई एडवाइस कि रीड करते रहो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, आर्टिकल्स हो, कुछ भी. तो यू नो इट गिव्स यू जनरल नॉलेज जिस पे आप कुछ तो बोल ही सकते हो. एंड ज़रूरी नहीं है कोई टेक्निकल टॉपिक ही हो, इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी एन एथिकल इशू या कोई भी फील्ड पे से टॉपिक हो सकता है. तो इट्स गुड टू हैव नॉलेज. आई थिंक माई एडवाइस वुड बी कि जीडी की प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा जीडी की प्रैक्टिस की जरूरत है. मतलब जीडी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए. जैसे हम लोगों ने इंटर्न के पहले तो ग्रुप बनाया था,
तो ऐसे हर शाम एक चीज डिसाइड कर लो तुम लोग की कब करने वाले हो। और जैसे राज ने पॉइंट आउट किया था कि एक जज बना लो, क्योंकि व्हेन यू आर स्पीकिंग यू डोंट नो तुमने कितनी गड़बड़ करी है, तो वो नोट डाउन करके रखेगा कि तुमने यहाँ पे गलत बोला था, ज्यादा टाइम दिया था, टॉपिक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला गया था। तो ये सारी सजेशंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुमको इम्प्रूव करने के टाइम पे। प्लस ये भी बात है कि यू कैन नॉट टोटली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द जीडी, क्योंकि कभी कभी टॉपिक्स आउट ऑफ द ब्लू, इट कैन बी स्काई एनीथिंग। सो तुम्हें ये बस मेक श्योर करना है कि यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे विशाल ने पॉइंट आउट किया कि अगर तुम्हें नहीं पता तो पहले दूसरों का सुन लो फिर अपना पॉइंट बोलो। दैट्स ऑल। And I mean, obviously, बहुत absurd topics थे such as zero, nothing, infinity, blue, तो कुछ भी आ सकता है। हाँ वो SLB में काफी हाँ आई गेस दो तरीके के टॉपिक्स होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, और वो कंपनी टू कंपनी रहते हैं। हाँ बट मेक योरसेल्फ प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, सिंपल। लाइक तुम प्रैक्टिस करो आपस में, मॉडरेटर बनाओ, बोलना एटलीस्ट सीखो, लाइक कैसे तुम फ्लॉलेसली फ्लुएंटली बोल सकते हो। और लाइक वो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा कि कौन सा पॉइंट कब बोलना है, स्टार्ट कब करना है, ये सब चीज़ कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। अगर तुम, और एक बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब तुम कोई पॉइंट को बोल रहे हो, क्योंकि कुछ पॉइंट हो सकता है सब्जेक्टिव, बट तुम ऐसे उसके पीछे रीजंस या एग्जांपल्स दो जो उस चीज को लाइक फुल प्रूफ बनाए। तो कॉन्फिडेंस इज आल्सो अ की इन जीडी। Thank you so much, seniors. So again, a very beautifully explained answer about GD. So these were the questions from our side. If anyone from the audience want to ask question, they can quickly ask it from the seniors. They can simply unmute themselves and ask the question. Seniors for the intern will come on day 0 or day 1? For intern, Raj. वेरी करता है, लाइक हमारे टाइम पे कोविड था तो इट केम आई गेस कब आया था, जनवरी में आया था क्या बेशक 20 जन। हाँ 20 एंड हमको लाइक ये श्योर नहीं था कि आएगा नहीं आएगा, तो लाइक हमने ऐसा बहुत अनसर्टेन था कि इट वुड कम इनटू सितंबर अक्टूबर, तो हमने उस टाइम से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। तो ऐसा था कि 1 महीने पढ़े, अब तो केन आ नहीं रहा तो छोड़ दिया, फिर अक्टूबर में पढ़ा, अब तो नवंबर हो गया, केन आ नहीं रहा तो ठीक है, दिसंबर में पढ़ा, हाँ अब तो एंडसम भी आ गया, दे दिया, कुछ हो नहीं रहा है, केन तो आ नहीं रहा है, फिर जनवरी में चलो ठीक है पढ़ते हैं और पता चलता है कि केन आ रहा है। और वो ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ 4-5 दिन के नोटिस में आया था, 15 तारीख को ऐसे कुछ मैसेज आया था कि केन का इंटरव्यू 20 तारीख को शेड्यूल हो रहा है। सो लेकिन फॉर्म हम लोगों से सितंबर में भराया गया था। सो मेक श्योर कि तुम जब भी आए प्रिपेयर हो रखो, तुम लोग के लिए डे 0 भी हो सकता है, यू नेवर नो। लाइक ये तुम ऐसा मान के चलो कि इट वुड बी समथिंग इनटू अगस्त, मतलब अगस्त सितंबर इसी के आसपास, तो ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट। एंड इवन फॉर प्लेसमेंट वो तो SCPD डिसाइड करेगा कि कब कौन। और 2 क्वेश्चन आए हैं कि 50 लग देना है तो उनके हाथों में भी होता है। Another question is, seniors, how's the feeling of joining in a place which would again become mini IC? That is why we are there. यही तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। Actually, that place is a ISM, not a mini ISM, I guess. वो ISM ही feel देता है, because तुम ऐसा घूम के बार ऐसा 360 you see और तुमको उसमें 270 ISM दिखेगा। तो वही एक रीज़न है कि यू फील सेफ कि तुम्हारे आसपास सीनियर्स हैं जिसको तुम जानते हो, बात कर सकते हो, और वो मेजरली रिमोट पोजीशन में रहोगे। सो इम्पोर्टेंट भी है तुम्हारे आसपास तुम्हारे दोस्त रहे तुम्हारे साथ। सो वो चीज़ अच्छा भी लगता है, लाइक यू फील यू आर इन योर कॉलेज इटसेल्फ, तुम दोस्तों के साथ रहते हो, तुम्हारा काम में मन लग रहता है, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी स्टेशन पे भी लोगों को छोड़ने जा रहे थे, तब मतलब ऐसा था कि अच्छा इनसे तो मिलेंगे, इनको क्या ही बाय बोले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर केन में इंटर्न करने चले गए तो पीपीओ स्किप कर सकते हैं क्या? तो पहले तो खराब, अगर नहीं जाना केन में तो विशाल से बात कर लेना पीपीआई कैसे सेकंड थिंग स्किप कर सकते हैं ऑफ कोर्स। एक फॉर्म आता है कि तुम एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं करते हो, एंड जो 7 लोग हम लोग गए थे में, देखो केन में तुम अगर रिजेक्ट भी किया, केन में तुम अगर इंटर्न कर रहे हो, मोस्ट लाइकली अगर तुमने अच्छा काम किया तो दे विल एक्सेप्ट गिव यू पीपीओ, आइदर पीपीआई और पीपीओ। और पीपीआई के बाद भी एक इंटरव्यू होता है और उसमें भी तुम्हारा आई वुड से 95% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर तुम इंटर्न तुम्हारा लग गया, देयर इज वेरी लिटिल चांस कि तुम स्किप कर सकते हो। तो बेटर कि तुम बैठो ही मत, और ये नो डिक्लाइन कंपनी भी है शायद, सो ये चीज़ तुम्हें भी अफेक्ट करेगी। तो बेटर है कि अगर तुम्हें नहीं जाना है उधर सिर्फ तो मत बैठो, और इंटर्न कर लिए मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि पीपीओ आ सकता है तुमको लेना पड़ेगा। अभी आई थिंक सीडीसी में रूल आ गया, देख लेना एक बार कि वेदर यू कैन इग्नोर द कंपनी और नॉट। बट हमारे टाइम पे जो हम लोग इंटर्न गए थे उसमें से एक बंदे ने पीपीओ को वो किया था, रिजेक्ट किया था, है ना, क्योंकि इट डजंट सीम टू गो इनटू केन, तो उसने रिजेक्ट किया था एंड परफेक्टली फाइन विद हिम कि वो नहीं जाना चाहता तो नहीं जाएगा। तो रिजेक्ट कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स सी द सीडीसी रूल्स, वो क्या कहते हैं। ऐसा नहीं कि तुम इंटर्न करके आगे तुमको जाना नहीं था और अब तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते। और अभी तो केन नो डिक्लाइन कंपनी है, तो आई गेस पॉसिबल नहीं है। वो प्लेसमेंट के लिए नो डिक्लाइन है, नहीं प्लेसमेंट के लिए, इंटर्न प्लेसमेंट दोनों के लिए। ओके बट तो फिर तो तुम मना कर ही नहीं सकते। उसका एक तरीका है, बता देता हूं। मतलब तुम्हें अगर पीपीओ, तुम वहाँ पे गए, काम किया, तुम्हें नहीं अच्छा लगा, तो वहाँ पे बोल के आ जाना कि सर पीपीओ मत दीजिएगा, फिर भी मिल जाता है भाई। सिंगल ने बोला था सर मुझे नहीं चाहिए, जबरदस्ती उसका पीपीओ आ गया। तो फिर नहीं हो सकता भाई, फिर तो सोच के बैठो। नहीं मतलब अगर तुमने स्किप ही करना है तो तुम किसी एक को अपॉर्चुनिटी दो जो उसमें जाना चाहता है। सो व्हाई आर यू वेस्टिंग अ सेट? सीधी बात, डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे ऐसे, इसलिए पूछा शायद। देखो सिंपल सा बात है, अगर नहीं जाना है, अगर कंपनी में नहीं जाना है ना, तो बी श्योर अबाउट कि किस में जाना है। लाइक हमारे साथ वैसा था कि मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को एग्जाम मोबाइल में नहीं बैठना है, तो नहीं बैठना है। उसके लिए मैंने गाली भी सुना था, आई हर्ड, है ना, फ्रॉम द सीनियर्स कि तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो एंड ऑल दैट। बट इट वाज माय डिसीजन कि मुझे नहीं बैठना है। आई डोंट वांट बी दैट सिंगल गाय जो उस कंपनी में जा रहा है आउट ऑफ ऑल। तो नहीं जाना तो नहीं जाना। इफ आई हैव डिटरमाइंड फॉर समथिंग तो आई विल गो इनटू दैट। देखो अगर सच में तुम्हें ओएनजीसी जाना है तो क्या ही बोलो, अब इंटर्न में मत बैठो। तो उतना फिक्स होके नहीं समझना चाहिए कि मिल ही जाएगा सब कुछ। हाँ मतलब इतना कोई गारंटी नहीं है। तो एंड अगर चले भी गए हो तो, अगर चले भी गए हो तो बोलो खराब आवाज कट रहा है उनका थोड़ा सा। और हाँ, जैसे इंटर्न के लिए बताया कि ये सोच के मत बैठना कि अब इतना हायर कर रही है कंपनी तो हमेशा इतना हायर करेगी। तो प्लेसमेंट में क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे पूछते हैं, तो अगर वही नहीं बता पाओगे तो वो क्यों लेंगे तुमको। तो एक दो क्वेश्चन तो तुम्हें बताने पड़ेंगे। तो प्लेसमेंट में भी तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताओ, वो डीप में क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए प्लेसमेंट के लिए भी अगर तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी ताकि कम से कम वहाँ उनके जवाब दे पाओ और वो तुम्हें ले पाएँ। और वैकेंसी का तो घटता बढ़ता रहता है, वो तुम्हारे टाइम पे क्या होगा उसका अभी कुछ पता नहीं है, पर तुम अपनी प्रिपरेशन करो। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन यहाँ पे, perks of joining Kane from apart from self growth, विशाल। देखो पार्क्स की तो लंबी लिस्ट है, बताने चालू करूंगा तो खत्म नहीं होगा। बट हाँ, कंपनी अच्छा है, तुम्हें ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। अगर तुम बारमेर वगैरह में हो तुमको स्टे मिल जाता है। लोग अपने होते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है ये कि तुमको कभी भी ये फील नहीं होगा कि कहाँ आ गए। हो सकता है कि रिमोट लोकेशन है, हो सकता है क्या होगा ही, ये इंडस्ट्री ऐसा है, सीधी बात। सो
लाइक तुम्हें वो चीज थोड़ा सा लगेगा, बट तुम अपने लोग उधर ज्यादा देखोगे। सेल्फ ग्रोथ ये सब तो मतलब सेल्फ ग्रोथ वाला पॉइंट हटा के यही है। बाकी पार्ट्स तो खूब सारे हैं, लाइक इट्स लाइक जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे अभी हम लोग ज्वाइन करेंगे, पिछली बार जो सीनियर ज्वाइन किया था उन लोग को 10 लाख तक उनको और उनके पेरेंट्स के लिए एंड फैमिली के लिए उनको मेडिकल बेनिफिट्स का इंश्योरेंस मिला है। सो इट्स अ वेरी गुड पर्क्स। तो ऐसे चीजें अच्छे है, बस काम करो, एंजॉय करो। और एक अंशु रंजन ने क्वेश्चन पूछा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंटर्न के लिए बैठूँ और प्लेसमेंट में ONGC के लिए। तो जैसे कि बताया कि नो डिक्लाइन कंपनी है, तो अगर तुम्हें PPO मिल गया तो फिर ONGC जाने का फिर गेट ही तरीका है। तो अगर तुम्हें गेट की तैयारी करनी है तो फिर गेट की कर सकते हो, अगर तुम्हें ये करना है तो। वरना अगर PPO मिल गया तो लेना पड़ेगा। और ये मत सोचो कि तुम ONGC ये केन में इंटर्न कर लो और ONGC में बेटर तुम्हारा हो ही जाए। ऐसा भी नहीं होता कि तुम बेटर तुम्हारा हो गया, क्योंकि वो ONGC है, वहाँ पे लगता है तुम्हारा GPA प्लस तुम्हारा कैटेगरी। तो वेदर यू आर फ्रॉम जनरल, OBC, SC, ST, तो वहाँ पे वो मैटर कर जाता है कि तुम उस अपने कैटेगरी में कितना रैंक करते हो। अगर तुम जनरल में, तो जनरल में तुम्हारा रैंक क्या है। ऐसा हो सकता है कि तुम जनरल में 5th रैंक हो और तुमको ये पता ही नहीं है, तुम ये सोच के कि मेरा तो हो ही जाएगा ONGC में, मेरे को तो सब कुछ आता है। नहीं होगा, क्योंकि जब बड़ा अनसर्टेन होता है ONGC का इंटरव्यू, अनसर्टेन होता है, क्योंकि वहाँ पे वो डिसहार्टनिंग होता है। वो बड़ा वाइवा टाइप होता है। तुम जैसे 5 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी जा सकता है। उनको फेवर नहीं करना होता है, बट लेकिन उनको ये रहता है कि सारा लिस्ट उनके पास होता है और वो बहुत टेक्निकली चलता है कि अगर रिजर्वायर के 3 चाहिए तो एक जनरल चाहिए, एक SC चाहिए और एक OBC चाहिए। तो ST वाले को सिर्फ मजाक करेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि नहीं है सीट, कहाँ से भरे। तो वो तुम्हारे साथ बस वो बात करेंगे, अच्छा वो सब कुछ रहेगा 5-7 मिनट, उसके बाद बोलेंगे ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत अच्छा सब कुछ जाएगा, बट लेकिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो उसके लिए कितना भी प्रिपरेशन करो वो बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 3-4 मिनट में कुछ पता ही नहीं लगता है। 3 गलत सवाल या 3 नहीं आने वाला सवाल आया तो तुम तो वैसे भी बाहर हो। तो तुम केन का अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर करके सब कुछ करने के बाद तुम श्योर हो सकते हो कि मेरा होगा। ONGC में सब कुछ श्योर करके 8 के ऊपर GPA रख के कैटेगरी का सब कुछ बिठाने के बाद भी कभी नहीं कह सकते हो कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत उनको 8 घंटे में 30 बच्चों का 35 बच्चों का लेना होता है इंटरव्यू, और वो बहुत एजेड लोग होते हैं, 7 लोग बैठे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि क्या करना नहीं करना। तो उसके लिए तुम कितना भी प्रिपेयर करो वो नहीं हो पाएगा 100% सर्टेन। केन सर्टेन है, अगर तुम पढ़े हो आधा 1 घंटा बैठ के तुम इंटरव्यू दे सकते हो, तुम डायग्राम बना सकते हो, फेस डायग्राम कर सकते हो, आर्टिफिशियल लिफ्ट के बारे में पता है, तो तुमसे पूछने का देते हैं, मौका देते हैं। एक बार गलत होता है तो दोबारा मौका देते हैं कि अच्छा ठीक है हम यहाँ हेल्प करते हैं, इस ग्राफ में तुम ये दिक्कत है तो तुम इस तरीके से ट्राई करो। ONGC में वैसा नहीं है, तुम ग्राफ गलत बनाए तो तुमको बोलेंगे बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। और उसके बाद जाओगे, उसके बाद पता लगा कि ग्राफ भी गलत बनाए हो और तुमको भगाए हैं बहुत अच्छे से। वो वहाँ पे वो वाला रिस्क है भैया, वो कितना भी प्रिपेयर करके जाओ। तो ONGC के लिए वो कफन बांध के जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। केन के लिए वैसा नहीं, केन के लिए पढ़ो आराम से, तब हो जाएगा। SLB में आराम से हो सकता है, केन में देखो दो कंपनी जो है ना, SLB और केन, खास करके इन दोनों में इनका इंटरव्यू बहुत ज्यादा वैसा होता है कि मतलब अगर तुमको आता है ना तो तुमको ले जाएंगे, और नहीं आता है ना तुम कुछ भी कर लो, कहेंगे कि ठीक है बेटा तुमको नहीं आता है, वो सामने कह देते हैं। तुम ये गलत किए हो तो गलत किए हो, वो सामने बता देंगे। और इनका जो इंटरव्यू होता है तुमको मौका देंगे वो करने के लिए। तुम्हें इंटरव्यू जैसा लगेगा नहीं, तुम्हें लगेगा कि इनफॉर्मल, जैसे हंसी मजाक हो रहा है। तो क्योंकि अपने सीनियर सब आते हैं, हमारा जो प्लेसमेंट का इंटरव्यू आता है वो सब आपस में बैठ के मतलब ऐसा लगता है काफ़ी कैजुअली बात करते हैं। पर फिर भी तुम ये ध्यान रखना जब भी तुम इंटरव्यू दो कि तुम फॉर्मली रहना, तो वो तुमसे थोड़ा इनफॉर्मल ऐसा कैजुअली बात करेंगे, पर तुम फॉर्मल होकर ही जवाब देना है। माय सजेशन फॉर अंशु, लाइक हर साल हर पोस्ट के लिए फॉर हर कैटेगरी कोई फिक्स सीट नहीं होता ONGC का, वो वैरी करते रहता है। एंड सो उस चीज मतलब तुम ठीक है, तुम्हारा हो सकता है कुछ सपना, तो तुम उसके लिए गेट का भी प्रिपरेशन ले सकते हो, बट तुम पूरा रिजिड मत बन जाओ, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट तुम बहुत सब कुछ सही करने के बाद भी ये हो सकता है कि तुम्हारा ONGC में ना हो। सही बता रहा हूँ मैं। और ये मतलब ये थोड़ा सा लक फैक्टर कभी कभी काम करता है। तो वही बात है, अगर तुमको
केन में नहीं जाना है और तुम चाहते हो कि मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, एट दैट केस तुम बैठो ही मत, किसी और को अपॉर्चुनिटी दो, ओएनजीसी में वो चले जाए मत, तुम फिर ओएनजीसी का इंटरव्यू दो, उसके बाद भी तुम्हें मौका मिलेंगे। बट अगर तुम्हारा ये मन है कि केन में इंटर्न करने का, मेक अ ट्राई टू गेट अ पीपीओ एंड काम करो कुछ दिन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये क्वेश्चन जो किसी ने पूछा था कि पर्क्स ऑफ जॉइनिंग केन अपार्ट फ्रॉम सेल्फ ग्रोथ, तो विशाल हैड ऑलरेडी आंसर्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. I would like to add one thing, that Kane is a company which is very ready to accept the new technologies in the industry. So this is the one point I would like to mention. So if you are fascinated about any new tool, any new thing, क्योंकि मैं जब अपनी internship पे गया था तो मुझे वहाँ पे बताया था कि वो एक tool मुझे दिखाने ले गए थे, and I saw that tool, और उन्होंने उसके बारे में बताया था कि this is the tool which is being used in India for the first time. So Kane is a very ready to accept new technologies. So if you are fascinated about that, so that is also a point I would like to add. That's Thank you so much, sir. Thank you so much, seniors. Now we are already running out of time. Thank you so much for providing such an insightful session, and I hope all the audience have got their answer clearly. Now I request Ashutosh to reach the ending note for this episode of Harshita, before we conclude, I'd like to add a couple of points. मतलब yes, sir, sure. Personal advice मान लो तो Yes, I mean everyone just focus on clearing your basics and making your foundation strong. वही सबसे ज़्यादा important है, because more often than not an interview starts with the basics. तो तुमको बहुत बेसिक पूछेंगे and then if you answer that तो difficulty level increase होता है, इसीलिए basics are pretty much important. And अगर कोई चाहता है कि मतलब पता करे या गेज करे कि what is my level of understanding, तो you can test yourself against the SP competency matrix, उनके वेबसाइट पे है, तो you can just check it out and उस हिसाब से also you can study the topics. I think ये last point के लिए ना एक from the third year एक request आया था कि sir you should design something of sort की, मतलब उसमें कुछ ऐसा क्रक्स टाइप का हो कि सर क्या ही पढ़ना है मतलब इंटर्न के लिए और प्लेसमेंट के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम भटक रहे हो, तुमको तारे के में दे दी और तुम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो उससे नहीं होगा इंटर्न, तुम्हारा प्लेसमेंट चाहे इंटर्न, तुम हर सब कुछ सॉल्व कर लिया, उससे तुम्हारा गेट निकल सकता है ना, तुमने सब कुछ सॉल्व कर दिया, तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है, बट अगर तुमको बेसिक्स ही नहीं आता है कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे होता है वो चीज़, तो उसके लिए आई वुड लाइक टू शो कि अभी मैं वर्क कर रहा हूँ उस पर, है ना, बट जस्ट अ सेक। Can you see the screen, guys? No, sir. स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं दिख रहा है। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, जो भी अपना क्वेश्चन या तो चैट में डाल दो या पूछ लो। आई थिंक कुछ इश्यूज चल रहा है। वो परमिशन दिया होना चाहिए शेयर का, पूछ लो। शेयर होगा। आई थिंक कुछ दिक्कत है क्या देवांश? नहीं, कुछ इशू चल रहा है। मैं एक बार बाद में दिखा दूंगा, है ना? अभी आ रहा था। हाँ, कुछ इशू आ रहा था। आई थिंक नेट के कारण हो रहा है, स्लो है थोड़ा सा। दिख रहा है क्या अब? Yes. तो इसमें लाइक
कुछ दिन पहले आई स्टार्टेड विथ कि मतलब बहुत लोगों को दिक्कत होता है समझने में ना, बहुत लोग स्ट्रगल भी करते हैं। आई नो कि मतलब तुमको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आई थॉट ऑफ कि मेकिंग कि ये हर सब्जेक्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम इंटर्न एंड प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव, और क्या पढ़ना है उसमें और क्या बिल्कुल आना ही चाहिए। उसके साथ साथ व्हाट हैव डन है कि कुछ यूट्यूब के वीडियोस भी हैं इसमें जो लिंक कर दिए यहाँ पे। अगर तुम कुछ इससे जैसे फंडामेंटल्स और रिजर्वायर इंजीनियरिंग है तो उसके कुछ टीक मास्टर के नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, टारे के मत पढ़ना ही पढ़ना है तुमको, बट अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो ये कुछ तुमको यूट्यूब लिंक्स मिल जाएंगे इसमें। और क्या क्वेश्चंस उसमें मतलब इंपॉर्टेंट है उस टाइप का, लाइक वो भी उसमें दिया हुआ है ना, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस टाइप से दिया हुआ है, मतलब क्या तुमको आना ही चाहिए उस टाइप से। हाँ अभी चल रहा है इस पे, जब मैं कंप्लीट कर लूँगा इसको तो मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है ना। आई एम वर्किंग ऑन दिस, स्टिल कंप्लीट नहीं हुआ है ना। और ये मुझे 3rd ईयर में रवि ने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप सर ऐसा कुछ बना सकते हैं तो अभी मैं खाली बैठा हूँ, तो एक बार मैं इसको कर लूँगा, एक बार सबसे डिस्कस कर लूँगा, बाकी लोग भी जो है ना उनसे रिव्यू करा लेंगे, इसके बाद सबसे शेयर कर देंगे। एंड दिस हैज़ टू बी स्पेसिफिक फॉर ISM, ऐसा नहीं कि तुम PDPU में भेज दिए UPS में तो इधर छोड़ के उधर कंपनी ज़्यादा सिलेक्शन करने लगेगी, तो समझ रहे हो ना। तुम्हारे सीनियर्स की मेहनत तुम्हारे लिए है। हाँ लाइक हम अगर ये ट्राई कर रहे हैं कि मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसमें आई विल मेक दिस एंड सबसे रिव्यू करा के आई विल शेयर विद यू ऑल गाइस। So now we are हाँ इसी का कर देंगे। नहीं सर मेरे को वो नहीं, मतलब वो तो अच्छी बात है, वो तो हमें मिल जाएगा पता है, बट ये हुआ ना कि हमने आपके इंटर्न के बारे में सुना, तो आप लोगों का इंटर्न वाज मोर सेंटर्ड अराउंड योर प्रोजेक्ट्स, तो हम उस व्यू से आए थे कि हमें 1 वीक के एंड में तो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बट हम सब के साथ ये हुआ कि हमारे टाइम उन्होंने प्रोजेक्ट देने की डेडलाइन कर दी 1 महीने बाद, तो वी आर बेसिकली ओनली स्टडिंग थिंग्स नाउ कि भाई हमें पढ़ने के लिए मटेरियल्स दे दिया है, वो गेट रीडिंग मटेरियल्स हैं एंड यू जस्ट हैव टू स्टडी एंड फील्ड पे जाओ एंड सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। सेम हैपेंड विद मी आल्सो। तब तो ये नॉर्मल है ना, मतलब हम थोड़े प्रेशर में आ रहे हैं। मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था पर लैपटॉप नहीं मिला था तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ ऑल की मतलब तुम कैसे सीखते हो, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक ही नया था। हम वेल टेस्टिंग पढ़ के जाते हैं यहाँ से, वहाँ पर रेट ट्रांजिट एनालिसिस मिल गया करने के लिए, कभी सुना ही नहीं। अब तुम खोज रहे हो उस चीज़ के बारे में, सीख रहे हो खुद से, अकेले हो बिल्कुल बैठे हुए, तो डू इट। Thank you so much, seniors. So we are running out of time, and SLB seniors too are waiting for their session to start. So over to you, Ashutosh. अच्छा सत्यम। Once again, senior, we take a moment to extend our sincere congratulations to each of our esteemed speakers for their outstanding achievements in securing positions within these renowned organizations. Their accomplishments stand as a shining example of their tireless efforts, unwavering dedication, and unwavering commitment to achieving greatness. Thank you, sir, for your time. One last thing कि अपने कुछ ऐसे दोस्त बना लो जो तुमको हर मोमेंट में हेल्प करें, है ना। कुछ एकेडमिकली अच्छे हों, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब ठीक है चिल करने वाले लोग भी होने चाहिए तुम्हारे पास, बट वो सीरियस भी होने चाहिए, मतलब एकेडमिकली तुमको हेल्प कर सकें, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा समझा सकें। जैसे आस-पास में जैसे प्रणव है, तो पूरा एंड से मेरे को इसी ने पढ़ाया है, इसके बोला तो हम पास हुए हैं अजय है तो कोई डाउट है तो जाके उससे पूछ लो, रंजन है ना, ऋतिक है, डिस्कस कर सकते हो इन लोगों से जाके, तुम कभी भी मीटअप वाले पर्सन है। विशाल है, घंटे घंटे बातें होती रहती हैं ऐसे ही चीज़ों पे, मोटिवेट करते रहता है कि इनको क्यों नहीं छोड़ना तो ऐसे लोग अपने पास आसपास रखो जो तुमको मोटिवेट कर सके, जो मतलब बूस्टेड हो आसपास। तो